morning to all of you. This is Abhilasha Nata, your social science teacher. So class, today we all are going to start our new chapter of your geography textbook, and the name of your chapter is Minerals and Energy Resources. So you all have some idea about what are minerals, what are energy resources. You already gone through these topics in your previous classes. In class 8, you have this chapter in your geography textbook, minerals and energy resources. So before starting this chapter, Aban comes to Guwahati with his father from a remote village. He sees people getting into strange houses like objects which move along the road. He also sees a kitchen dragging a number of houses along with it. He is amazed and asked his father, "Why don't our houses move like the one we saw in Guwahati, Ba?" Ba replies, "These are not houses, they are buses and trains. Unlike our houses, these are not made of bricks and stones. Metal like iron and aluminium are used in making these. They do not move on their own, they are driven by an engine which needs energy to work." So, there is a kid called Haban. Okay, he belongs to Guwahati, Assam. Guwahati से belong करते हैं, and Haban and his father both are from a remote village of Guwahati. Okay, now they some comes to Guwahati from a remote village. एक छोटे से गांव से गुवाहाटी आए हैं, ठीक है, घूमने के लिए आए होंगे. तो उन्होंने क्या देखा कि हाउसेस, आपने भी देखा होगा कि आजकल तो बहुत सारी जो शॉप्स हैं, जैसे कि नॉर्मली जो मैंने बीकानेर में देखा है वो देखा है कि काफी जो पान वाली शॉप्स है या फिर आपके जो ये चाट एंड ऑल स्नैक्स वगैरह की शॉप्स हैं, आजकल काफी ट्रेंड में है यहाँ पे. तो सिमिलरली उसने भी क्या देखा, ही सीज पीपल गेटिंग इनटू स्ट्रेंज हाउसेस जो मूव कर रहे हैं, बस में मूव कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें किचन भी है. तो वो काफी अमेज हुआ, काफी वंडर हुआ कि मैं पापा ये कैसे हो रहा है, हमारे हाउसेस जो हैं ऐसे क्यों नहीं है जो हमने गुवाहाटी में देखे. तो उसके फादर क्या रिप्लाई करते हैं, तो these are not houses, they are like buses and trains only, but unlike our houses they are built up of or made up of bricks and stones. bricks और stones से नहीं, aluminium, आयरन, ठीक है, ऐसे मेटल्स से बने हुए हैं. एंड इनको मूव करने के लिए जो मूव करते हैं, मूव करने के लिए क्या यूज हो रहा है, एनर्जी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, राइट. सो जस्ट लाइक यू ऑल कम टू स्कूल इन अ बस और इन अ कार और इन अ स्कूटी, तो क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए ना, चाहे वो इलेक्ट्रिक स्कूटी हो, चाहे वो आपकी डीजल स्कूटी हो, पेट्रोल स्कूटी हो, एनर्जी तो यूज हो रहा है ना. तो इंजन्स जो चलते हैं, यूज लेते हैं, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. तो नाउ सी, जस्ट like different people, we also use like different things in our daily life, which are made up of metal, which are made from metal. Like we all are using like phones and computers, laptops right now. तो इनमें भी क्या है, काफी metals का use हुआ है, ठीक है. So there are some metals, जैसे हाउसेज में, अभी आप हाउस में देखोगे, अपने घरों में देखोगे, तो आप अपनी बहुत सारे ऐसे आइटम्स देख सकते हो, ऐसी लिस्ट बना सकते हो जिसमें मेटल्स का यूज हुआ है, ठीक है. लाइक इन अलमीरा, ठीक है, जो हैंडल है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है या फिर आयरन का बना हुआ है, ठीक है. आप जो टेबल या चेयर यूज कर रहे हो सकता है उसमें कुछ पिन्स वगैरह लगी हुई है, नेल्स वगैरह लगी हुई है, वो भी मेटल की बनी हुई है, ठीक है. किचन में इतने सारे यूटेंसिल्स हम यूज कर रहे हैं, तो स्टील कहाँ से जनरेट, स्टील किससे बनता है, आयरन ओर से ही प्रोड्यूस होता है स्टील भी. तो देयर आर लाइक सो मेनी enormous things in our house which are made up of metals. So now the question arises, where do these metals come from? Even your mother is like wearing a jewelry, जो भी गोल्ड सिल्वर पहना हुआ है वो भी एक टाइप का मेटल ही है. तो ये जो जितने भी मेटल्स हैं वो कहाँ से आते हैं? So
You have studied that the earth's crust is made up of different minerals embedded in the rocks. जो अर्थ की क्रस्ट है, क्रस्ट, मेंटल कोर, 3 लेयर्स पढ़ रखी है हमने अर्थ की, तो उसकी जो अर्थ की जो अपर लेयर है, ठीक है, जो हम क्रस्ट बोलते हैं, इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. वो किस चीज से बनी हुई है? डिफरेंट मिनरल्स से बनी हुई है. डिफरेंट जो मिनरल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट मिनरल्स से बने हुए हैं. एंड वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट. देयर आर डिफरेंट डिफरेंट माइनिंग इंडस्ट्रीज. तो एक प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इन मेटल्स को, मेटल्स को क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं. So minerals are an indispensable part of our lives. Almost everything we use, from a tiny pin to a towering building or a big ship, all are made from minerals. The railway lines and tarmac of the roads, our implements and machinery too are made from minerals. Cars, buses, trains, aeroplanes are manufactured from minerals and run on power resources derived from the earth. Even the food that we eat contains minerals. In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites. So, as you all know, या फिर आपने कभी observe किया है, like we all are using minerals directly, indirectly, ठीक है. हम क्या कर रहे हैं? मिनरल्स का यूज ले रहे हैं. दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, यू कैन से बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारी लाइफ का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का. हम इसको अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है. लाइक इवन हम जो नमक खा रहे हैं, सबसे छोटा एग्जाम्पल, जो छोटा एग्जाम्पल मैं आपको यही दूंगी, जो हम नमक खा रहे हैं वो भी एक मिनरल है, ठीक है. उसके बिना तो हम रोटी भी नहीं खा सकते हैं, राइट. तो मिनरल्स जो है हमारी लाइफ का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट है. हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ से. चाहे एक छोटी सी पेन ही क्यों ना हो, एक कार ही क्यों ना हो, अलमीरा ही क्यों ना हो, बसेस, एरोप्लेन्स, ठीक है. इवन जो जिस रोड पे हम जा रहे हैं वो भी क्या है? मिनरल से ही बना हुआ है, ठीक है. जिसमें उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है, कुछ मटेरियल जो है मिनरल्स का ही है. सो ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. एंड इवन जो हम बसेस, कार्स, व्हीकल्स, कोई भी व्हीकल्स जो यूज कर रहे हैं, वो भी किससे रन कर रहे हैं, किससे चल रही है? पावर रिसोर्सेज से ही तो चल रही है. चाहे हम सोलर एनर्जी का ही यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर एसी क्यों नहीं चला रहे हैं, बट वो चल कैसे रही है? वो रिसोर्सेज से ही चल रही है ना. तो एवरीथिंग from a tiny pin to a large ship, everything is made from minerals. So minerals are like very important part of our life, ठीक है. So there is a small paragraph given in your book about a bright smile from toothpaste and minerals. जो आप कोलगेट, पेप्सोडेंट, ठीक है, क्लोजअप, ये सारे जो आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हो, इवन टूथपेस्ट जो यूज कर रहे हो, इन सब में भी क्या है? आपके मिनरल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के. टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ, ठीक है. एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग, ठीक है. दीज आर लाइक सम ऑफ द मिनरल्स जिससे हमारे जो टीथ है क्लीन करते हैं, ठीक है. वाइट, किसी से व्हाइटनेस आती है, कुछ मिनरल्स जो है जर्म्स से क्या करते हैं? फाइट कर पाते हैं. कुछ मिनरल्स आपके जो टीथ है उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं. So these are like some of the minerals. Fluoride, which is used to reduce cavities, comes from a mineral fluoride. अब कैविटीज को रिड्यूस करने के लिए फ्लोराइड करके कोई एक मिनरल है, जो फ्लोराइड मिनरल से क्या हो रहा है? एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है. Most toothpaste are made white with titanium oxide, which comes from minerals called rutile, almanite and anatize, ठीक है. अब आप सबने साइंस में पढ़े होंगे ये टर्म्स, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे. तो ये जो नॉर्मली जितने भी टूथपेस्ट हैं किससे बन रहे हैं? व्हाइट कलर के ही देखे हैं नॉर्मली जितने भी हैं, ठीक है. व्हाइट शेड तो उसमें एक रहता ही है. तो उसमें क्या यूज किया जा रहा है? टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है. वो कौन से मिनरल से आ रहा है? रूटाइल से, एल्मेनाइट से, एनाटीज, ये कुछ मिनरल्स हैं. इनसे ये जो व्हाइटनेस आ रही है वो इस चीज इन मिनरल्स से आ रही है. द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम माइका. अब जैसे क्लोजअप में आपने देखते हैं कि
स्पार्कल्स डले हुए होते हैं, ठीक है। मुझे क्लोजअप का ही एग्जांपल याद आ रहा है, और कोई एग्जांपल नहीं याद आ रहा कि कौन से टूथपेस्ट में स्पार्कल होते हैं। तो वो जो स्पार्कल आता है वो किससे आ रहा है? माइका से। द टूथब्रश एंड ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स फ्रॉम पेट्रोलियम। अब प्लास्टिक कहाँ से हमारे पास आ रहा है? प्लास्टिक कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, वहीं से हमारे पास प्लास्टिक भी बन के आ रहा है। तो टूथपेस्ट, जो टूथ ब्रश हम यूज कर रहे हैं, जो ट्यूब जिसके अंदर टूथपेस्ट है वो यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है? एक प्लास्टिक, मतलब पेट्रोलियम क्या है? हमारा एनर्जी रिसोर्स है, उसमें से प्लास्टिक आ रहा है, और उसी में हम क्या कर रहे हैं? हम उस प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं। सो देखा आपने, हमारे लाइफ में एक छोटी सी चीज भी जो है उसके लिए हम क्या है? मिनरल्स पे डिपेंडेबल है, राइट। सो नेक्स्ट इज dig a little deeper and find out how many minerals are used to make a light bulb. This is your homework, ठीक है। dig a little deeper and find out how many minerals are used to make a light bulb. एक लाइट बल्ब को बनाने के लिए कौन कौन से मिनरल्स यूज करते हैं हम, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, आई विल आस्क यू इन माय नेक्स्ट क्लास अबाउट दिस। All things need minerals. Life processes cannot occur without minerals. Obviously हमने एग्जांपल्स देख ही लिए। एक छोटी सी पेन ले लो, टूथपेस्ट ही ले लो, सुबह उठते ही हम सब टूथब्रश को हाथ में लेते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो भी हम क्या है? उसमें भी हम मिनरल्स का ही यूज कर रहे हैं। तो all living things need minerals. Life processes cannot occur without minerals. Although our mineral intake represent only about 0.3% of our total intake of nutrients, they are so potent and so important that without them we would not be able to utilize the other 99.7% of food stuff. हमारी जो बॉडी है उसमें जो भी जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, 99.7% जो फूड स्टफ हमारी बॉडी में जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो यूटिलाइज नहीं हो सकता अगर हम वो 0.3% जो मिनरल इनटेक है हम नहीं ले। हम नमक खाते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में हमारा नमक जाता है, और ऐसा भी सुना होगा कि हमें नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट कितनी है? ओनली 0.3% हमारी बॉडी में जो है मिनरल की, नमक की जो है, स्पेशली नमक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम सब उस मिनरल का यूज करते हैं हमारे फूड में, ठीक है। ओनली 0.3% जो है रिक्वायरमेंट है। बट इस 0.3% मिनरल को अगर हमने नहीं लिया, हमने इनटेक नहीं किया, तो वॉट एवर वी आर ईटिंग, चाहे एप्पल हो, चाहे बनाना हो, चाहे मैंगो हो, या फिर कोई भी आप प्रोटीन ले रहे हो, कोई प्रोटीन पाउडर भी खा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है उसका। क्योंकि अगर आप वो मिनरल नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी उसको अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगी। जो डिफरेंट आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, राइट। सो इट इज वेरी like vital for us, vital for a living being, even you can say किसी भी living being के लिए ये बहुत important है। So what is a mineral? एक definition देख लेते हैं। Geologists define minerals as a homogeneous, naturally occurring substances with a definable internal structures. तो जियोलॉजिस्ट ने क्या बोल दिया? क्या है? एक होमोजीनियस मिनरल। क्या है? एक होमोजीनियस। होमोजीनियस इज लाइक समथिंग व्हिच इज लाइक सेम, ठीक है, सिमिलर, सेम, वन, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। एक नेचुरली ऑकर्ड होते हैं और इनके कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरियड फॉर्म्स इन नेचर, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टाल्क, ठीक है। अब मिनरल्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। वी आर यूजिंग लाइक some of you or some of your parents are like wearing, maybe wearing diamond, ठीक है। कुछ लोग पहनते होंगे, कुछ लोग नहीं पहनते होंगे, सोना पहनते होंगे, नहीं पहनते होंगे। तो कितना हार्ड मेटल है डायमंड, तो कितना हार्ड मेटल है ना। चाहे वो हार्डेस्ट डायमंड हो या फिर जो आप नॉर्मली घर पे एक टेल्कम पाउडर जो यूज करते हो, वो भी क्या है? एक मिनरल है। वो कितना सॉफ्ट होता है। तो चाहे हार्डेस्ट मटेरियल, हार्डेस्ट डायमंड की बात कर लो या फिर सॉफ्टेस्ट टाल्क की बात करते हो,
कर लो। ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, अब वेरिएशंस है काफी उसमें। So you have already learnt about rocks. Rocks are the combination of homogeneous substances called minerals. Some rocks, for instance, limestone, consist of a single mineral only, but majority of the rock consist of several minerals in varying proportions. Although over 2000 minerals have been identified, only a few are abundantly found in most of the rocks. अब देखिए कुछ रॉक्स जो हैं, ठीक है, कुछ रॉक्स जो हैं आपके बहुत सारे सब्सटेंस मिलके बनते हैं, और सिमिलरली कुछ रॉक्स ऐसे भी हैं जो एक ही मिनरल से आपके बन रहे हैं। कुछ रॉक्स जो हैं आपका एक ही मिनरल से बन रहे हैं, बट मेजरली अगर हम बात करते हैं तो दीज आर द रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम मिनरल्स। सो अभी तक कितने मिनरल्स आइडेंटिफाई कर चुके हैं हमारे साइंटिस्ट? 2000 मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, बट उसमें से बहुत ही कम ऐसे मिनरल्स हैं जो हर एक टाइप के रॉक में फाउंड होते हैं। A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depend upon the physical and chemical conditions under which the material forms. This in turn results in a wide range of colors, hardness, crystal forms, luster, and density that a particular mineral possesses. Geologists use these properties to classify the minerals. Now it is important, how do we classify minerals? If minerals are the combination of homogeneous substances, एक ही जैसे substances का अगर mixture है rock, तो हम different minerals को, चाहे hard minerals हैं, ठीक है, सॉफ्ट मिनरल है, लाइक है तो वो रॉक स्ट्रक्चर में, बट हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो जो जियोलॉजिस्ट है वो क्या करते हैं, दे डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। कुछ फिजिकल और केमिकल कंडीशन पे डिपेंड रहते हैं कि उनके कलर्स क्या है, उसकी हार्डनेस कैसे है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म क्या है, उस क्रिस्टल का कलर क्या है, ठीक है, लस्टर मतलब कितना शाइन कर रहा है, ठीक है, डेंसिटी कितनी है उसकी, थिकनेस क्या है उसकी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए। सो स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय जियोग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट. Geographers study minerals as part of the Earth's crust for a better understanding of landforms. Obviously, Earth's crust को पढ़ने के लिए हमें मिनरल्स की जो है नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज अर्थ क्रस्ट किससे बना हुआ है? मिनरल से ही बना हुआ है। रॉक्स में क्या है, क्या प्रेजेंट है? मिनरल्स ही प्रेजेंट है ना। So the distribution of mineral resources and associated economic activities are interest of geographers. A geologist, however, is interested in the formation of minerals, their age and physical and chemical composition. Obviously, जियोग्राफर्स का ये प्रोफेशन है, ठीक है, तो ये उनकी कैसे मिनरल फॉर्म हुआ, एक मिनरल की एज क्या है, या कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग में तो क्या होते हैं, लाइक स्टार्टिंग में तो कलर उनका डिफरेंट होता है, कुछ टाइम के बाद वो डिफरेंट कलर का हो जाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है चेंज हो जाते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से या कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस के वजह से, तो वो मिनरल क्या है, दूसरे मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच जियोग्राफर्स स्टडी अबाउट। ओके, क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है। केमिस्ट्री में आप सबने मिनरल्स के बारे में कुछ ना कुछ उनके केमिकल कॉम्पोजिशन या बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है कि क्या मिलके क्या बन रहा है, ठीक है। सो for general and commercial purpose, minerals can be classified as under. So we will study about the classification of minerals in our next class. This is all about today ki what are minerals, why they are important to us, what are the different elements through which we will able to know about the different types of minerals in our lives, and how like in our daily life we use different types of minerals from a pen to a car, ठीक है, हर जगह हम मिनरल्स का यूज कर रहे हैं, चाहे वो फूड में हो, तो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, ये सब पढ़ा हमने। अपने नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ओके, चलो, थैंक यू सो मच क्लास।